फेथ या विश्वास या भरोसा टाइम का मोहताज नहीं है. How to revive the faith once you lose the faith when you face a failure? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फेल्योर इंसान का तभी होता है जब आप फेल्योर को स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें. Do you think that looking at the current scenario all over the country, like communal riots and the rise of gender violence in our state of West Bengal, do you think as a whole the citizen should have faith in this government? आज के गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में, यथा प्रजा तथा राजा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. क्योंकि आप उनको चुन के भेजते हैं. हम जो पब्लिक में हैं, हम भी सोचते हैं कि कोई भी काम करे सरकार कर दे. कोई भी चीज की कमी हो सरकार के पास चले जाइए, अपने एमएलए के पास चले जाइए, अपने उसके पास कॉर्पोरेटर के पास चले जाइए. क्यों नहीं हम अपने आप को खुद देख सकते हैं? अपना हम क्यों नहीं लाएं वापस? I feel really privileged and proud that today I'm in the city of joy, and in this premier institution has given so many thinkers and leaders of the society in every field, be it in this field of art, be in the field of politics, economics, corporate world, and so on and so forth. I'm sure this institution under Father Dr. Savio will flourish further, and there will be lot many boys and girls who will make the name and fame and make the country proud of. Thank you very much, Father. Today's subject given to me to discuss and share with you all is the role of faith, confidence, vishwas. What is the role of these things in the success of every human being? Whether you want to become successful entrepreneur or you want to become successful professor, teacher, doctor, anything. Is there a role of faith, bharosa, in all what we do in the life? What do you feel? Whether is there a role of faith in our success? In what way? Any one of you would like to share something? Sir, if we don't have faith in ourselves, we can never succeed in our ventures, according to me. That's very good. Very good answer. Anybody else looks at it in a different way? Faith. Yes. Is the destination of our life. Faith is destination of our life. Okay. Sir, at first I just want to congratulate you and thank you, as you have taken the responsibility to make such a type of show, and all the people of our country have getted such a type of opportunity to visualize, to realize you in front, as it is the biggest opportunity for me to see you in front of you are mine. Excited. It is the biggest opportunity for me, sir. He is given, he is one of the best and one of the greatest person in our country. So it is the biggest opportunity for me, and I just want to tell you something, tell everybody something about faith. Listen, please. Yes. Yes. Boliye. Sir, myself, Kingshuk Mahapatra, I am an entrepreneur. For me, faith is something, if we have to do something in our life, then definitely there will be some belief. And which is unreality of today, it can be able to become the reality of tomorrow if we have faith and believe on it. What is faith? What is faith got to do in your success? Sir, you are an entrepreneur. Say it briefly. Sir, for me, there is a difference between dream and reality. That is faith. If you have faith in your dream, then it will definitely become the reality of tomorrow. There is a difference between dream and reality. Yes, and that is called faith, according to him. Good. Sir, good answer. I would agree with you in that faith cannot operate without belief. But I think the basic difference between faith and conviction lies in the fact that we are convicted of something or we are convinced about something when we have full information about it. But faith is predicated on our
assumption that we need to take a leap without knowing what lies on the other side. So, as an exercise, therefore, faith is much more wholesome than conviction. Very good answer. Very good. So faith acts as a driving force which takes an individual forward towards his destination. Faith is a Driving force which takes an individual forward towards his destination. takes individual to its destination. Okay. Yes? According to me, faith and hard work both are related to each other. If you don't have the faith, you won't have the zeal to do the hard work, and you don't have the zeal to achieve your targets. So only in case if you have the faith, you have the ability, you have the faith that you can do it, then only you will have the interest to go towards your destiny and to... You're right. But we will discuss. I think it could be put in better way. That faith makes you work harder. Thank you very much. And I want to talk to my viewers sitting at home. घर पे बैठे हुए आप सब मुझे देख रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं फेथ किसी की ज़िंदगी में कामयाबी देने के लिए कितना ज़रूरी और कितना एक अहम हिस्सा है. और आप भी जो 2 करोड़ लोग इस शो को देख रहे हैं पूरे देश में, आप भी सोचते होंगे कि फेथ का क्या रोल आपकी लाइफ में है. आप भी इस पर विचार कीजिए. और आप देखिए यहाँ के कलकत्ता से जो इतने वाइब्रेंट आपको ऑडियंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस उत्साह से वो लोग इस शो में भाग ले रहे हैं, इसका आपको भी आनंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास. चले आज एक उदाहरण से हम एक बात इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं. इसी स्टेट की मैं बात करूंगा, इसी वेस्ट बंगाल की बात करूंगा. जिस समय अर्ली 1970s में जब बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियनिज्म का प्रभाव हमारे पूरे देश में ही था, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि उसी समय लगभग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे स्थापित हुई थी. और ऐसा भी हुआ था कि बहुत से फैक्ट्रीज बिजनेस उठ के वेस्ट बंगाल से पलायन कर गए थे, चले गए थे. ये आप लोगों ने सुना होगा. हाँ जी, यू फेस दैट. तो लेकिन फिर भी एक ऐसा बिजनेस हाउस था जिनके यहाँ वेस्ट बंगाल में कम से कम 1 दर्जन फैक्ट्रीज अलग अलग तरह की थी. उनमें किसी में भी कोई स्ट्राइक नहीं हुई. बिरलाज में उनके यहाँ क्यों स्ट्राइक नहीं हुई? उन्होंने अपने आप को यहाँ के सिचुएशंस के साथ चेंज कर लिया. जी, उनके एम्प्लॉयज को पूरा फेथ था उनके ऊपर. एम्प्लॉयज को उन पर पूरा फेथ था, भरोसा था. The thing is that the faith, the thing which Birla had in companies was having a temple of God, where he used to say that the faith you should have on the God. I mean, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, अगर नहीं है तो भगवान उधर है. So that faith is there. दिस इज द रियलिटी. उन्होंने क्या कहा कि भैया आपका एम्प्लॉयर मैं हूं, आपको उसके लिए तनख्वाह देता हूं, आप उसके लिए काम करते हैं. आपको जितनी तनख्वाह मैं देता हूं उससे ज्यादा अगर चाहिए तो मेरे पास मत आइए, वो मैंने भगवान तुम्हारे वहां फैक्ट्री में ही बिठा दिए हैं, उनसे मांगिए जो कुछ मांगना. तो लोगों को उस भगवान पे भरोसा था, फेथ था, विश्वास था, तो स्ट्राइक नहीं हुई. क्या होता है अक्सर आप किसी भी पूजा की स्थल पे जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये तो वैसे भी एक होली इंस्टीट्यूशन है. यहाँ तो आई एम श्योर सुबह रोज जरूर आप प्रार्थना करते होंगे. तो जब हम अपने इष्ट देवता से, चाहे कोई भी हो, किसी फेथ का हो, जब हम उससे पास जाते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, कोई समस्या रखता है, मेरा बेटी का शादी नहीं हुआ, किसी का पढ़ाई करने के लिए फीस नहीं है, किसी के पास और समस्या है, किसी कोई बीमार है, कुछ है, तो वो प्रसाद चढ़ा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके अपनी समस्या उनके सामने रख देते हैं.
क्योंकि आपको उनके ऊपर फेथ है, आप समझते हैं कि मैंने अपनी समस्या इनको दे दी और ये ही इज ऑल माइटी पावरफुल। या किसी डाइटी के पास गए तो डाइटी इज ऑल माइटी पावरफुल और मेरा काम अब हो जाएगा। ये विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ हम उस मंदिर से, उस पूजा जगह से निकलते हैं और इनवेरिएबली 80% केसेस में वो काम हो जाता है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो भगवान जो उस मूर्ति में समाया हुआ है, केवल हमारा विश्वास है जिसकी वजह से वो भगवान है, वरना अगर आप नहीं माने तो वो भगवान नहीं, केवल पत्थर की मूर्ति है। तो ये एक विश्वास की बहुत बड़ी शक्ति। अमेरिकन इंस्टीट्यूशन, अमेरिका में कुछ 5-6 लोग हैं, उन्होंने एक संस्था बना ली फेथ इंस्टीट्यूशन करके, और शायद अगर आप नेट पे जाएंगे तो उसको अगर आप गूगल करेंगे तो उसके ऊपर 1 घंटे की उन्होंने फिल्म भी बनाई। उसमें एक व्यक्ति ऐसे कहता है कि मैंने किसी समय एक ड्रीम किया था कि मेरा एक घर हो, इस प्रकार का घर हो। ये कभी ड्रीम किया था यंग एज में, और लेकिन फिर अपने बिजनेस में, अपने कामों में उलझ गया, भूल गया। 20 साल बाद वो अपना जो पहले घर में रहते थे वो घर बदल रहे थे दूसरी जगह। बदलने के उसमें उन्होंने अपने पुराने सामान को जब देखा तो उनको वो जो तस्वीर 20 साल पहले उनके दिल में थी वो तस्वीर उनको दिखी, और उसको देख के वो भुचक्का रह गया कि जो घर में जा रहा था वो बिल्कुल वही घर था। तो फेथ में बहुत बड़ी ताकत हम लोग बिजनेस में रोज देखते हैं। मैंने एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मैंने कोई काम बिजनेस शुरू किया, लेकिन जब तक मेरे उस काम को लगने वाले लोग, चाहे वो सीईओ लेवल के हों या लोअर डाउन लोएस्ट लेवल के लोग हों, अगर सभी उस चीज में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो चीज उतनी कामयाब नहीं होगी। तो फेथ के दो रूप से आप इसको देख सकते हैं। एक इस रूप में भी कि आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, और दूसरे रूप से जो साइंटिस्ट लोगों ने जो माना है इस बात को, उन्होंने इस तरह से माना कि ये भी एक जो अपना ब्रह्मांड, जो मैग्नेटिक वेव्स, जो वाइब्रेशंस, जैसे इस समय भी जब जहां हम जो बैठे हैं, एक तरह की अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं, इस जगह पे एग्जिस्ट करती। और जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि बड़ा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ की वाइब्रेशन महसूस करके, क्योंकि मैं थोड़ा विपස්සना का साधक हूँ तो वाइब्रेशन जल्दी समझ आती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से आपको आपके शरीर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, सब चीज़ पर असर होता है। एक कोई फिल्म थी पिछले दिनों, ओम शांति ओम, देखिए आपने किसी ने? उसमें क्या डायलॉग बोलते हैं वो? यस, एक जना बोलिए कोई। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें मिलाने की कोशिश की है, साजिश की है। कि अगर तुम्हें विश्वास है, अगर तुम्हें भरोसा है तो आप आगे बढ़िए, ये पूरी सारी कायनात मिलकर तुम्हारा साथ देगी। इस प्रकार का एक डायलॉग वहाँ उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। और तो इस प्रकार की चीज़ें, तो अभी तक बताइए कोई एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Sir, I wanted to ask, what is the relevance of faith in today's rational world, which you were just talking about? Faith has got nothing much to do with God. Faith का यानी विश्वास, भरोसा। अगर आप, मैं ये पूछता हूं आपसे कि आप अपने घर से चल के यहां तक आए, क्या चीज खींच के लाई आपको यहां? आपको सुनने आई हूँ, काफी सुना था आपके बारे क्यों? में, ये सोच कर कि कुछ अच्छा
अच्छी बातें पता चलेगी। तो यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर मन में विश्वास था कि जिस आदमी को मैं सुनने के लिए जा रही हूं वो कुछ ठीक देने को देगा, कुछ कहीं विश्वास था ना इस बात का, तब आप आए। वही विश्वास, वही फेथ है। और इस देश ने 2 तरह की धाराएं दी हमें, एक प्रार्थना की धारा दी और एक श्रमण की धारा दी। श्रमण में ये कहा गया कि आपको अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी कहीं पे भी पहुंचने के लिए, पर एक प्रार्थना की भी धारा दी, जो परमात्मा को हाथ जोड़ के आपने विश्वास कर लिया, आपका मन में जो कमजोरी थी वो दूर हुई। उतना ही काम वो करता है। वो कहीं जाके आपको, कहीं से जाके हुंडी लाके आपको 2 करोड़ रुपया नहीं दे देता है या कहीं से वो लड़की के लिए वर कहीं ढूंढ के नहीं दे देता है, लेकिन आपका विश्वास जो है वो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे पहले सुबह किसी ने कहा कि ये स्ट्रेंथ देता है विश्वास, तो स्ट्रेंथ देता है, विश्वास देता है, उससे आप हिम्मत करके काम करते हैं और ये विश्वास से करते हैं कि मैं कामयाब हूंगा। क्योंकि आज देखिए आप कितने भी बहुत से गाने आज पुराने समय से अब तक आते रहे हैं, हम होंगे कामयाब, तू चल चला चल साथ राही, पहुंच मिलेगी मंजिल, क्या पता नहीं कितने चीजें हैं वो फेथ देने के लिए। जी बताइए आप। थैंक यू सर। Question is, many a times when we start on a journey, we have faith in ourselves and in what we dream to achieve. Then as we come across challenges, we cross them. But sir, कभी-कभी धीरे-धीरे वो faith lose होते रहता है। एक challenge overcome किया, faith था, फिर next challenge आ जाते वो faith बहुत धीरे-धीरे diminish होके फिर वो डर की भावना ले लेता है। माने the faith totally changes into a scared feeling. तो सर उसको कैसे प्रिवेंट करें? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये प्रकृति का नियम है। जब शरीर ने को, अगर आपके दिमाग को अगर डर ने घेर लिया तो वो मल्टीप्लाई करेगा। इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, इट विल ग्रो बिगर एंड बिगर। पहले दिन आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे दिन आपको नींद नहीं आएगी, तीसरे दिन कुछ ना कुछ पेट में डिसेंट्री हो जाएगी, चौथे दिन किसी और रूप से वो उभरेगा। नेवर एंडिंग स्टोरी। तो पर फेथ को, विश्वास को, चाहे वो आत्मविश्वास हो, चाहे किसी दूसरे पर आप विश्वास करके काम कर रहे हो, अपने आप, अपने साथी पे भरोसा करके कर रहे हो, अपने माँ बाप पे भरोसा करके कर रहे हो, फेथ को मत वीक होने दीजिए। उस समय अगर जहां फेथ डगमगाए, जहां विश्वास डगमगाए, जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे 2 मिनट आंख बंद करके केवल अपने सांस को देखने शुरू कर दीजिए, उस पर ध्यान करिए, जो आपको अच्छा लगता हो वो करिए, तो वो डर दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। हम सब कहते हैं कि वी ऑल शुड हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इन जनरल, लेकिन सर अक्सर ये पाया जाता है कि लोग, जो जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, कि लोग अक्सर ज़रा से डगमगा जाते हैं अपने राह पर। तो टू कीप अप दी पॉजिटिव एटीट्यूड और एक सकारात्मक सोच हमेशा के तौर पे एट अ कंसिस्टेंट लेवल, सर इस पे अगर आप कुछ बता सके, इस पे इसका हाउ कैन वन प्रैक्टिस दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस? थैंक यू सो मच। जी, आप जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, वो जवाब देना चाहते हैं, बताइए। There is a proverb, sound health may contain sound mind. If your mind is sound, जी, then no ठीक pressure. है, बड़ा अच्छा कहा आपने। उन्होंने कहा कि अगर हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा। सर फर्स्टली वांटेड टू से दैट जो सक्सेस की बात अगर आई, ठीक है, तो फेथ, मतलब फेथ का जो बात है, अगर सपोज हम लोग जब साइकिल पहले चलाने सीखते हैं, एक बार गिरता है, सेकंड डे गिरता है, थर्ड डे, हर रोज चोटें लगती है, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग साइकिल चलाना ही भूल जाए, कि ये मतलब होप या फेथ छोड़ दे कि साइकिल हम लोग कभी जीवन में चला ही नहीं सकती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर इरादे हो मजबूत तो कोई भी मतलब अपने रास्ते से, अपना वे से, अपना सक्सेस से कोई भी डगमगा नहीं सकते। मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू।
कुछ पार्ट जवाब आपको आपकी बात का मिला होगा कि उसने लड़की ने ये कहा कि जब जिंदगी में आपको फेल्योर मिलता है तो एक स्वाभाविक रूप से आप अपने आप के विश्वास को खोना शुरू करते हैं, और जैसे आपका विश्वास डगमगाया वहां आपकी सोच जो सकारात्मक थी वो धीरे धीरे नकारात्मक रूप से बदलनी शुरू होती है, नेगेटिव विचार आने शुरू होते हैं, नेगेटिविटी जन्म लेती है, तो वो भी एक प्रकार से एक बीमारी है जिसके कारण आप फिर कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो तो वी कैन डिस्कस ऑफलाइन। सर एक छोटा आपको बोलना नहीं चाहिए मेरे को, छोटा एग्जाम्पल है सर, महाभारत में दिखा गया है when Bhim was assigned to kill Duryodhan, Gandhari opened her eyes and Duryodhan was given every power. Panchali came and told Bhim, don't go, you can't kill him. तो भीम ने बोला था देखो असंभव में मेरे कोई भय कोई डर नहीं है, लेकिन असंभव को करने का टाइम मेरे विश्वास मत खुआओ. I have to be determined of what I am doing. That's called positive mind. There is nothing called positive. It has to be a determined mind. That's what I feel. That's very good thing. So I would like to repeat my question. I just want to ask how to revive the faith once you lose the faith when you face a failure. सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फेल्योर इंसान का तभी होता है जब आप फेल्योर को स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें. हो सकता है किसी चीज में कामयाबी नहीं मिली, डोंट एक्सेप्ट दैट इट इज अ फेल्योर. आप देखिए कि एक अटेम्प्ट में आप 100 गज की लॉन्ग जंप लेना चाह रहे हैं, चलो 100 फीट की 80 फीट गए, आप दोबारा फिर करेंगे शायद 82 फीट जाएंगे, दोबारा भी फेल हो गए. अब वो फेल्योर है ना, वो कि आपका टारगेट था 100 फीट लेकिन नहीं पहुंच पाए. आप बार बार करते रहेंगे तो पहुंचेंगे. फेल्योर इज ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट इट. इफ यू डोंट एक्सेप्ट, वेयर इज द फेल्योर? My question is that a lot of people are talking about faith over here right now, and according to me, faith gives rise to fear, and fear sometimes gives rise to superstition. And there are so many self-proclaimed godmen who are actually banking on the faith of common people that we see every day on television. So can you please throw some light on the fact that does faith really support or advertise superstition? Thank you. It doesn't, because फेथ का मतलब यहां किसी धर्म से नहीं है, किसी रीति रिवाज से नहीं है. अगर सुपरफिशियल फेथ करेंगे आप तो वो एक आपको सुपरस्टिशंस पे ले जा सकता है. आप ये कहें, कोई आदमी कहे, सुभाष चंद्र कहे कि आप मेरा शो देखते रहिए, आप बड़े बढ़िया सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा विश्वास मत करिए, उस पर फेथ मत करिए. आपको अपने आप अपना रास्ता तय करना पड़ेगा. जहां आपने किसी अंधविश्वास के साथ फेथ को जोड़ दिया, वहां फेथ बेकार हो जाता. So my question is, what if I'm not certain that what I trust means? What if I'm not certain what I trust? मैं आपको एक उदाहरण से समझिए. अगर सर्टेनिटी नहीं है आपके दिमाग में, इसका मतलब आप श्योर नहीं है कि क्या करना चाहते हैं. क्यों, ऐसा ही है ना? Yes, sir. इसको एक उदाहरण समझिए. हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री पुराने समय में होते थे सरदार प्रताप सिंह कैरो. कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो शायद समझेंगे. उनके साथ उनका फाइनेंस मिनिस्टर था शर्मा जी, हरबंस लाल शर्मा, और ये ट्रू स्टोरी है. गाड़ी में जा रहे थे वो, उस समय में इतनी कोई आगे सिक्योरिटी पीछे सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं होता था. तो उन्होंने दूर से देखा कि एक बिल्ली रास्ता काटना वो सड़क पार करना चाहती, लेकिन वो बिल्ली थोड़े आधे रास्ते आई, फिर गाड़ी आते हुए देख लिया, वापस भाग गई. फिर आगे आई, फिर भागने लगी, क्रॉस करने लगी, कार के नीचे आके मर गई. तो मुख्यमंत्री ने पूछा, भाई शर्मा जी ये बिल्ली क्यों मर गई? बोले सर गाड़ी ये सड़क क्रॉस कर रही थी, गाड़ी आ गई, मर गई.
कहता भैया तू तो फाइनेंस मिनिस्टर होने के लायक नहीं है। तुम अगर यही नहीं समझे, क्योंकि वो बिल्ली अनसर्टेन थी, उसको भरोसा नहीं था कि मैं सड़क पार कर सकती हूं कि नहीं कर सकती। आगे पीछे करने में अनसर्टेनिटी में मारी गई। अनसर्टेनिटी कभी मत रखिए किसी भी चीज में, विश्वास करके आगे बढ़िए। Do you think that looking at the current scenario all over the country, like communal riots and the rise of gender violence in our state of West Bengal, do you think as a whole the citizen should have faith in this government? देखिए, एक पुराने समय में इस हिंदुस्तान में सभी राजे राजाओं का राज था। पूरा देश 500, 700, 800 देशों में, एक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उस वक्त क्या कहते थे? एक आम कहावत थी कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी। बहुत से राज्य बड़े खुशहाल थे, बहुत से राज्य खुशहाल नहीं थे। राजा अगर एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिवली काम नहीं करता है अपनी स्टेट का, तो वो राज्य ठीक नहीं चलता। लेकिन आज के गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में, यथा प्रजा तथा राजा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि आप उनको चुन के भेजते हैं। अगर आप गलत लोगों को चुन के भेजेंगे तो ये प्रश्न आएंगे आपके सामने। Sir, my question is that the most important time a person needs faith on himself is at the time of taking up a new venture. We all are students, after completing our graduation and other courses, we would start a new, take up a new venture, maybe a business or profession. So what is the importance of faith at that very point of time, according to you? देखिए, फेथ या विश्वास या भरोसा टाइम का मोहताज नहीं है। आप किसी भी एज में हो, किसी स्थिति में हो, जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में रह के अपना विश्वास पूरा करके उस काम को करते चले जाइए, यही फेथ है। स्टूडेंट्स के लिए भी फेथ होना इस समय में बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये अपना स्टडी पूरी करके जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ उसमें मैं कामयाब हूँगा। बल्कि इसमें कई चीज़ों में हमने कई बार एक डर एक नाम की जो चीज़ है, डर के ऊपर मैंने सब्जेक्ट लेके पूरा एक शो किया कि डर क्या करता है, वो भी देखिएगा। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो फेथ के बिना, भरोसे के बिना जिंदगी में कामयाबी इल्यूजन देती है। As we very well know, in a very large section of the population, the exact statistic of which is disputable, and hence I'm not mentioning it, who live under the poverty line and are thus not privileged enough to have the assets of education, good food, proper shelter, and a holistic form of development. In the absence of these stepping stones, how can any one of these people have faith in any sort of social institution? And if so, do they not deserve to progress? Yeah, it's a very good question. But I think by and large, we ourselves are responsible for this. This is my belief. अगर सक्सेस मुझे मिल सकती है तो बाकी आपको क्यों नहीं मिल सकती, ये मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ। मेरे शो में पिछले दिनों एक मिस्टर जेपी गौड़ मैं लेके आया था उनको, अभी लगभग वो 77 ईयर्स ओल्ड हैं। 100 रुपया लेके घर से निकले थे। वो भी उनकी शादी होगी तो बीवी को उनके माता पिता ने दिया था तो उनसे ले लिया, और वो व्यक्ति उस 100 रुपये से उसने पढ़ाई किया, साथ में नौकरी करता रहा, पढ़ता रहा, एक ओवरसियर बना, जूनियर इंजीनियर जिसको बोलते हैं। वहाँ से उसने धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ नौकरी की, आगे बढ़ता चला गया। आज उसके पास 1,80,000 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। ऐसे लोग जो बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते? ये थोड़ी सकारात्मक सोच आप भी हमको सबको लानी पड़ेगी। और जहाँ तक प्रश्न रहा ये सिस्टम का, ये जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से फेथ जो हट गया, ये किसी न किसी समय में
इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लोग आए, जिन लोगों ने राज किया, आप देखिए पिछले 18 मई या 17 मई 2014 का गार्जियन अखबार लंदन का, उसका एडिटोरियल पढ़िए आप, नेट पे सर्फ करेंगे मिल जाएगा आपको। तो एक बड़ी अच्छी वो एडिटर हैं महिला, उन्होंने लिखा कि भारत को सही मायने में आज स्वतंत्रता मिली है। 17 मई 2014 को वो लिखती है और उसमें एडिटोरियल में लिखती है वो आगे कि अब तक जो भी लोग राज करते आए हिंदुस्तान पर, वो ब्रिटिश राज ही करते आए in one form or the other। अंग्रेजी सोच, अंग्रेजी में विचार, एनीथिंग विच इज इंपोर्टेड इज गुड, एनीथिंग मेड इन इंडिया इज बैड। ये सोच के साथ ये देश आज 67 वर्ष का हुआ है, 67 years old इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सोच को हमें बदलनी पड़ेगी। मेरा कोई अंग्रेजी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में सोचने का विरोध है। जो हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने आदमियों पर भरोसा नहीं करते हैं, उस बात से मुझे चिढ़ है। तो ये भी एक अपने लोगों में फेथ की बात है, जो कि फेथ इस देश के आजाद भारतवर्ष ने अपने आप पर करना छोड़ दिया। हम जो पब्लिक में हैं, हम भी सोचते हैं कि कोई भी काम करे सरकार कर दे, कोई भी चीज की कमी हो सरकार के पास चले जाइए, अपने एमएलए के पास चले जाइए, अपने उसके पास कॉरपोरेटर के पास चले जाइए। क्यों नहीं हम अपने आप को खुद देख सकते हैं? अपना अहम क्यों नहीं लाएं वापस? अपना अहंकार क्यों नहीं उजागर करते हैं? ये बहुत से विषय हैं, ये अगर चर्चा करेंगे तो इसके ऊपर तो मेरा सब्जेक्ट बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ये। आई लव दिस सब्जेक्ट एंड इसमें सिर्फ केवल अपने आप को, स्वयं को जगाना और अपने स्वाभिमान को जगाना। जब तक स्वाभिमान हमारा नहीं जगेगा, जब तक हम लेने की इच्छा रखते हुए नहीं रहेंगे, देने की स्थिति करेंगे, तभी ये स्थिति ठीक होगी जो आप कह रहे हैं। I want to ask you one question, sir, about that. In the case when I have to rely on others, in the case of mine that I live in an area which is surrounded by not city of joy, that is city of sorrow actually. There are Muslims and the city of the scheduled caste. So the fact is that in my case I am a music composer and writer, sir, and I want to establish myself as an entertainment professional. But the fact is that I have to rely on others. I have full faith on me. But in the case that I have to rely on others, then what I have to do? Because I have written my things, I have composed songs, but I am dependent to these directors or that particular producer's views. And the fact is that I'm not been able to approach because he's too busy in his own work. And as I am not an eminent personality, he has no time to give me. देखिए ये इंडिविजुअल केस है, बैठ जाइए। In that case, what I should do? ये इंडिविजुअल केस है, इसका इस पूरी उसमें मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन आपको देखिए ये तो जर्नी है आपकी। उस जर्नी में हमको सबको किसी न किसी पे निर्भर करना पड़ता है, और निर्भर किए बिना ये समाज नहीं बनता है। तो आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ठीक से मार्केट करना पड़ेगा उन लोगों के सामने, ताकि वो आपकी कला को पहचाने, आपकी कला को पहचान के आपको मौका दें। So I would like to ask you, suppose we have faith on ourselves, how is it possible that we can make the others believe that what we are thinking is right? There are many instances when we have faith on ourselves to do something, but the others around who support you need to achieve that doesn't have faith in you. So how is it possible that we can make the others believe that yes, the faith that I have is true? देखिए ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि जब आपको अपने आप पर भरोसा है, आपके मम्मी पापा आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि आप इसके काबिल हो, कुछ जो आप सोचते हो उसको करने के लायक हो, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उनको दिखाना पड़ेगा। उनको भी विश्वास दिलाने का भी विश्वास आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा।
My question is, how can we make the faith so that we can make a good future for our children? फेथ अकेला ये होने से कि मैं अपने बच्चों का भविष्य बना लूंगी या बना लूंगा, उससे उनका भविष्य नहीं बनेगा। फेथ केवल अपने ऊपर करिए कि आप कुछ करने के लायक हैं, आप ये कर सकते हैं, आप उनका बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सक्षम हैं। उस फेथ को कर लेके आप चलेंगे, विश्वास लेके चलेंगे, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे आपके बच्चों का भविष्य बन सके। फेथ केवल वो सोच के कि मैं भगवान पे भरोसा कर लिया मेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा। वो एक मिथ होगा, वो अंधविश्वास होगा। चलिए, तो इसके साथ हम आज इस शो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।